Hello everyone, welcome back to the channel Easy Easy Life. I am Nisha Arora. Today we are going to discuss another exam conducted by RPSC. It is again secondary teacher exam, which was held on 30th October 2018. So let me start this exam paper. Question number 1. I usually sleep well. I usually sleep well. The word sleep in this sentence belongs to the class of words called. जो स्लीप वर्ड है वो इस सेंटेंस में किसको बताता है, किस चीज़ को इंडिकेट करता है, वेदर इट इज़ वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन. सो इट इज़ verb. Next question is the Times of India is a daily paper. The word daily in this sentence belongs to the class of words called. Now ये जो है डेली वर्ड जो दिया गया है ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है, ये एडजेक्टिव है, एडवर्ब, नाउन और वर्ब. सो इट वुड बी एन एडजेक्टिव. ए डेली पेपर, पेपर जो हमारा नाउन है उसकी इंफॉर्मेशन को ऐड कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है, डेली पेपर है तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है. The Times comes out daily. The word daily in this sentence belong to the class of words called. तो यहाँ पे बताना है the times comes out daily. तो इसमें अब हमें बताना है कि ये क्या है, verb, noun, adverb, adjective. तो यहाँ पे ये adverb का काम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि verb के बाद की चीज़ों को बता रहा है. तो ये किसके बारे में है, ये adverb है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर. द गवर्नमेंट्स डिसीजन वॉज एक्सट्रीमली अनवाइज. द वर्ड डिसीजन इन दिस सेंटेंस बिलोंग टू द क्लास ऑफ वर्ड्स कॉल्ड. फोर्थ में हमारा क्वेश्चन में जो आंसर होगा वो हो जाएगा, डिसीजन वर्ड के बारे में पूछा जा रहा है, वेदर इट इज़ वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब. तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा नाउन. गवर्नमेंट्स डिसीजन, ठीक है, ये हमारा नाउन है. क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ. तो यहाँ पे सॉरी, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट. द वर्ड अबाउट इन दिस सेंटेंस बिलोंग टू द क्लास ऑफ वर्ड्स कॉल्ड. अगेन सिमिलर क्वेश्चन ही है, पूछा जा रहा है प्रोनाउन, प्रेपोजिशन, एडवर्ब, कंजंक्शन. तो ये हमारा फिफ्थ में जो आंसर होगा वो हो जाएगा कि जो अबाउट वर्ड है वो क्या है, प्रेपोजिशन है. क्वेश्चन नंबर 6. So he sat down and breathed deeply as the yoga teachers blanked him years ago. Options are teaches, had taught, have taught, would taught. 6 में हमारा आंसर हो जाएगा had taught. Yoga teachers had taught him years ago. 7 number question. I have hardly blanked money. Options are some, little, few, any. And answer would be number 4. Option number 4, any. Now, question number 8. Blank in the garage is motor oil. Oil, the oil, a oil, an oil. Answer would be the oil in the garage is motor oil. 9 number question is, we will have coffee when the visitors blank here. The we will have the coffee. We will have coffee when the visitors reach here. Visitors reach here. ठीक है. Number 10 question. They blank the car last week. They blank the car last week. Have bought, would buy, might buy. Last week past simple का है तो इसमें आंसर हो जाएगा bought. They bought the car last week. 11 number question. We have got plenty of chairs. We blank any more. Options are wanted, didn't want, wanted not, don't want. तो आ जाएगा आंसर don't want. We have got plenty of chairs. We don't want any more. अब हमें और की ज़रूरत नहीं है. 12 number question. There weren't blank people there. Options are much, little, a little, many. So the answer would be many. There were not many people. 13 number question is deleted by RPSC. ठीक है, it is starred question. Number 14 question. Blank is expensive. So what is expensive? Petrol is expensive. The petrol, a petrol, and petrol. No, petrol is a common noun, right?
नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वोंट गो विद यू अनलेस ही ब्लैंक ही हैज टू. 15 number question, answer would be he won't go with you unless he feels, he has to. Number 16 question, here blank your mother. Options would be options are sorry, came, has come, comes, would come. Answer would be comes. Here comes your mother. 17 number question, I used my shoes as. इस क्वेश्चन को आरपीएससी ने स्टार्ट कर दिया है, इट मीन डिलीटेड है ये क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन, द पार्सल ब्लैंक अराइव्ड. इसके जो आंसर हो जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, द पार्सल हैज अराइव्ड. 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, द फार्मर ब्लैंक द लैंड. द फार्मर ओन्स द लैंड. 20 number question, I blank the letter yesterday. So it is very easy. Past simple का indication adverbial हमें दिख ही रहा है. I posted the letter yesterday. 21 number question is blank house on the corner is for sale. यहाँ पे point out करके बताया जा रहा है the particular house के बारे में. The house on the corner is for sale. Answer would be third. Next question is 22. Did she blank a message? 22 में जो आंसर होगा, did she leave, did के बाद फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, did she leave a message. 23rd नंबर क्वेश्चन, चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट क्वेश्चन फॉर्म. क्वेश्चन फॉर्म को करेक्ट जो है वो बताना है. Where are the president and his family members staying? Where are staying the president and his family? Where the president and his family are staying? Next और फोर्थ ऑप्शन है, the president and his family are staying where. तो अब हमें जो इसका करेक्ट क्वेश्चन फॉर्म है वो बताना है. Where are the president and his family member staying? ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर, ब्लैंक शी वॉन्ट टू गो विद अस. तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं डोंट, डजंट, वरंट, आरंट. तो 24 में जो इसका आंसर होगा, डजंट शी वॉन्ट टू गो विद अस. 25 नंबर क्वेश्चन, व्हाट आई से एंड व्हाट आई थिंक ब्लैंक माई ओन अफेयर्स. व्हाट आई से एंड व्हाट आई थिंक आर माई, ठीक है, आर माई ओन अफेयर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेल मी व्हेन द केटल ब्लैंक boils, boiled, will boiled, would boil. नंबर 26 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा boils. नंबर 27 क्वेश्चन, when she smiles who can be angry blank her. 27 का आंसर हो जाएगा with who can be angry with her. 28 नंबर क्वेश्चन, he bought a watch blank rupees 3000 into by 4 at. 28 का आंसर हो जाएगा 4 rupees 3000. 29 नंबर क्वेश्चन इज वन ऑफ द बॉयज ब्लैंक गोन होम. तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 29 का 3. वन ऑफ द बॉयज हैज गोन होम, उनमें से एक घर चला गया है. 30th क्वेश्चन है रेनू विद हर मदर एंड सिस्टर ब्लैंक स्पेंडिंग ए मंथ इन लंडन. तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, रेनू विद हर मदर एंड सिस्टर इज स्पेंडिंग ए मंथ इन लंडन. Number 31 question, 31, he considers such jobs blank him. तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं अंडर, ओवर, बीनीथ, डाउन. तो यहाँ पे किसी के अंडर में काम करना है तो वो बीनीथ आ जाएगा उसका आंसर, ठीक है. ही कंसीडर्स सच जॉब बीनीथ हिम. नेक्स्ट क्वेश्चन, माई आंसर इज डिफरेंट ब्लैंक कनिकाज. 32 क्वेश्चन नंबर को आरपीएससी ने डिलीट करा है. नंबर 33 क्वेश्चन, ही वॉज सरप्राइज्ड ब्लैंक व्हाट शी सैड. 33 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ही वॉज सरप्राइज्ड एट व्हाट शी सैड. 34 नंबर क्वेश्चन, इधर द मेयर और हिज डिप्टी ब्लैंक बाउंड टू कम. 34 में आंसर हो जाएगा इधर द मेयर और हिज डिप्टी इज बाउंड टू कम. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड यू गेट दैट बुक ब्लैंक सुरभि. Did you get that book
फ्रॉम सुरभि, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रॉम हर सुरभि। क्वेश्चन नंबर 36, 1200 रुपीज ब्लैंक आर सेल प्राइस। 1200 रुपीज, 36 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1200 रुपीज इज आर सेल प्राइस। Choose the correct option according to the required transformation as stated in the brackets without changing the meaning. Now we have to discuss question number 37 to 52 according to the transformation के जो sentence है वो उसके according करना है 37 से 52 तक। Let me talk about someone dealt with the problem by developing a reference test। इसको हमने passive में बनाना है, तो इसके ऑप्शन देखते हैं। द प्रॉब्लम हैज़ बीन डेल्ट विद बाय डेवलपिंग ए रेफरेंस टेस्ट। द प्रॉब्लम वॉज डेल्ट विद बाय डेवलपिंग ए रेफरेंस टेस्ट। द प्रॉब्लम इज डेल्ट विद बाय डेवलपिंग ए रेफरेंस टेस्ट। ए रेफरेंस टेस्ट वॉज बीइंग डेवलप्ड टू डील विद द प्रॉब्लम। तो 37 में जो हमारा आंसर हो जाएगा वो होगा नंबर 2। द प्रॉब्लम वॉज डेल्ट विद बाय डेवलपिंग ए रेफरेंस टेस्ट। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, दे हैव नॉट सोल्ड द हाउस। पैसिव में कन्वर्ट करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। दे हैव नॉट सोल्ड द हाउस। द हाउस 38 में जो आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा द हाउस हैज़ नॉट बीन सोल्ड। द हाउस हैज़ नॉट बीन सोल्ड। 39 नंबर क्वेश्चन, यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप ऑफ द ग्रास। यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप ऑफ द ग्रास। तो 39 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, प्लीज कीप ऑफ द ग्रास। क्योंकि ये एक पैसिव सेंटेंस दिया हुआ था, एक्टिव में इसको बनाना था, तो यही आंसर होगा प्लीज कीप ऑफ द ग्रास। नंबर 40 क्वेश्चन, माई वाइफ वॉज डाउटफुल वेदर आई वुड रियली अटेंड द फंक्शन। इस सेंटेंस को नेगेटिव में बनाना है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। माई वाइफ वॉज नॉट श्योर दैट आई वुड रियली अटेंड द फंक्शन। माई वाइफ वॉज श्योर दैट आई वुड रियली अटेंड द फंक्शन। माई वाइफ बिलीव्ड दैट आई वुड नॉट रियली अटेंड द फंक्शन। माई वाइफ वॉज इन नो डाउट दैट आई वुड रियली अटेंड द फंक्शन। तो हमारा जो आंसर है करेक्ट वो ये हो जाएगा, माई वाइफ वॉज नॉट श्योर दैट आई वुड रियली अटेंड द फंक्शन। 41 नंबर क्वेश्चन, द बाईसाइकिल नीड्स ऑयलिंग। तो इसका पैसिव बनाना है 41 का, तो इसका जो आंसर हो जाएगा द बाईसाइकिल नीड्स टू बी ऑयल्ड। द बाईसाइकिल नीड्स टू बी ऑयल्ड। 42 नंबर क्वेश्चन इज शी इज टेकिंग द डॉग फॉर अ वॉक। पैसिव बनाना है, शी इज टेकिंग द डॉग फॉर अ वॉक। तो यहाँ पर जो 42 में आंसर आएगा वो होगा हमारा द डॉग इज बीइंग टेकन फॉर अ वॉक। द डॉग इज बीइंग टेकन फॉर अ वॉक। 43 नंबर क्वेश्चन, द डॉक्टर सेड टू मी डोंट ईट स्वीट थिंग्स। इनडायरेक्ट में बनाना है 43 में। 43 में जो हमारा आंसर हो जाएगा द डॉक्टर एडवाइज्ड मी नॉट टू ईट स्वीट थिंग्स। इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है, द डॉक्टर एडवाइज्ड मी नॉट टू ईट स्वीट थिंग्स, यहाँ पे एडवाइस किया जा रहा है। 44 नंबर क्वेश्चन इज पीपल डू नॉट कंसीडर द म्यूजिक टू बी इम्पॉर्टेंट। पीपल डू नॉट कंसीडर द म्यूजिक टू बी इम्पॉर्टेंट। इसका पैसिव बनाना है और हमारा आंसर क्या होगा, द म्यूजिक इज नॉट कंसीडर्ड टू बी इम्पॉर्टेंट। द म्यूजिक इज नॉट कंसीडर्ड टू बी इम्पॉर्टेंट। 45 नंबर क्वेश्चन इज शी सेड टू हिम व्हाई डू यू वांट द जॉब। व्हाई डू यू वांट द जॉब। तो इसका जो आंसर होगा 45 का वो क्या हो जाएगा, शी आस्क्ड हिम व्हाई ही वांटेड द जॉब। तो इसका जो आंसर है वो हमारा 1 नंबर ही होगा, शी आस्क्ड हिम व्हाई ही वांटेड द जॉब। 46 नंबर क्वेश्चन, आई डिसलाइक हर। इसको हमने नेगेटिव में बनाना है, कन्वर्ट करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। तो 46 में जो हमारा आंसर आएगा अगेन इट इज ऑप्शन नंबर 1, आई डोंट लाइक हर। आई डिसलाइक हर, आई डोंट लाइक हर। ठीक है। नंबर 47 क्वेश्चन, ही सेड टू हर कैन यू वर्क ऑन सैटरडेज।
इनडायरेक्ट स्पीच में इसको बनाना है। 47 में हमारा जो आंसर है, ऑप्शंस देखिए। ही आस्क्ड हर इफ यू कैन वर्क ऑन सैटरडेज, ही आस्क्ड हर if she worked on Saturdays, he asked her if she could work on Saturdays। तो यही हमारा जो आंसर है वो ये है, he asked her if she could work on Saturdays। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 48 नंबर क्वेश्चन इज नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है हमें इसको। 48 के जो ऑप्शंस हैं वो ध्यान से देखिए। इंटेरोगेटिव में डज एनीथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस, तो ये इसका इंटेरोगेटिव फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49 नंबर, दे सैड वी शिल बी डिलाइटेड टू कम। लेकिन इसके ऑप्शंस को हम नहीं देखने वाले क्योंकि आरपीएससी ने इस क्वेश्चन को टाटा बाय बाय कर दिया, यानी कि डिलीट कर दिया। अब देखिए 50 नंबर क्वेश्चन, प्रोमिसेस शुड बी कैप्ट। तो इसका जो आंसर होगा एक्टिव का, वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ पहले किसी एग्जाम पेपर में देखा है, ठीक है। अब देखिए 51 नंबर क्वेश्चन, आई सैड टू हर यू लुक पेल। इनडायरेक्ट स्पीच में इसको बनाना है। 51 का जो आंसर होगा वो ये हो जाएगा, आई टोल्ड हर दैट शी लुक्ड पेल, शी लुक्ड पेल। 52 नंबर क्वेश्चन, शी कीप्स सेइंग आई एम अ फेलियर। इनडायरेक्ट स्पीच में इसको बनाना है, शी कीप्स सेइंग दैट। 52 का जो आंसर है वो यही हो जाएगा, शी कीप्स सेइंग दैट शी इज अ फेलियर। क्योंकि यहाँ प्रेजेंट है तो ये भी आगे प्रेजेंट में ही चेंज होगा, इसलिए यहाँ पे शी इज अ फेलियर। लेट वी टॉक अबाउट अब अनदर क्वेश्चन 53 to 56, पॉलिटिक्स ब्लैंक एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। पॉलिटिक्स एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट 53 में आंसर है बड़ा सिंपल सा, इज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 80 पाउंड्स ऑफ वीक ब्लैंक नॉट अ गुड वेज। 54 में जो इसका आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा 2। 80 पाउंड्स ऑफ वीक 80 पाउंड्स ऑफ वीक इज नॉट अ गुड वेज। वेज होता है मजदूरी। 55 नंबर क्वेश्चन इज द वर्कर्स ब्लैंक वरीड अबाउट देयर जॉब्स। वर्कर्स को यहाँ पर बताया जा रहा है, द वर्कर्स ब्लैंक वरीड अबाउट देयर जॉब। 55 में हमारे जो ऑप्शंस हैं इज, आर, वॉज, हैव, तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा आर। द वर्कर्स आर वरीड अबाउट देयर जॉब्स। लेट वी टॉक अबाउट अनदर क्वेश्चन नंबर 56, द जीन्स यू सेंट टू मी ब्लैंक फिट मी। 56 में आता है आंसर, द जीन्स यू सेंट मी, इसका आंसर आ जाएगा डोंट फिट मी। 57 नंबर क्वेश्चन, यू ब्लैंक वर्क दिस सैटरडे। एब्सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन है यहाँ पे, बाध्यता नहीं है ये बताया गया है। 57 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नीडंट, यू नीडंट वर्क दिस सैटरडे। नेक्स्ट देखिए ये 58 नंबर क्वेश्चन, आई ब्लैंक सी यू अगेन। कंप्लीट सर्टेनिटी को बताया जा रहा है कि डेफिनेटली ऐसा होगा ही होगा, तो 58 में जो आंसर है वो हो जाएगा विल। कंप्लीट सर्टेनिटी पूरी संभावना है, पूरा निश्चय है कि यहाँ मिलना ही है। आई विल सी यू अगेन। नेक्स्ट देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन को, यू ब्लैंक यूज माई का परमिशन ग्रांटेड इन इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा, यू कैन यूज माई कार परमिशन ग्रांटेड इन इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट। अब देखिए 60 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, व्हेन आई वॉज अ बेबी आई ब्लैंक पुट माई फूड इन माई माउथ। तो 60 नंबर क्वेश्चन में आंसर आएगा, आई कुड पुट माई फूड इन माई माउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 61 नंबर, जॉइन द गिवन सेंटेंसेस यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल। शी फिनिश्ड द वर्क, शी वेंट होम, शी went home as soon as she finished the work, she finished the work and went home, having finished the work she went home, she finished the work to go home। तो यहाँ पे 61 में जो आंसर हो जाएगा हमारा वो ये हो जाएगा, she finished the work and went home। यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल का वर्क जो है सेंटेंस हमें
बनाना था। ज्वाइन द गिवन सेंटेंस यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल। 61 में 3 सॉरी 63 में जो ऑप्शन है वो 3 नंबर है। हैविंग फिनिश द वर्क शी वेंट होम, ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है, मैं उसको सेकंड को अंडरलाइन कर रही थी। हैविंग फिनिश द वर्क शी वेंट होम, 61 में 3। अब देखिए नंबर 62 क्वेश्चन, ज्वाइन द सेंटेंसेस यूजिंग एन इन्फिनेटिव। ज्वाइन द सेंटेंस यूजिंग एन इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव को यूज करना है इन दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए। ही हर्ड द गुड न्यूज, ही वॉज हैप्पी। तो 62 में जो हमारा आंसर होने वाला है तो वो हो जाएगा ही वॉज हैप्पी टू हियर द गुड न्यूज, ही वॉज हैप्पी टू हियर द गुड न्यूज। 63 नंबर क्वेश्चन, आर वाटर सप्लाई हैज बीन, तो यहाँ पे 63 में आ जाएगा कट ऑफ, हमारी जो वाटर सप्लाई है उसको कट ऑफ कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 64 नंबर, दीज ओल्ड हाउसेज आर गोइंग टू बी, तो यहाँ पे 64 में हमसे पूछा जा रहा है कि क्या ऑप्शन होगा, तो वो हो जाएगा नॉक्ड डाउन। दीज ओल्ड हाउसेज आर गोइंग टू बी नॉक्ड डाउन, यानी उनको गिराया जाना है। 65 नंबर क्वेश्चन इज फायर फाइटर्स सून ब्लैंक द फायर ब्लैंक। 65 में आंसर हमारा आ जाएगा पुट आउट, फायर फाइटर्स सून पुट द फायर आउट, यानी कि फायर फाइटर्स ने तुरंत ही शीघ्र ही आग पर काबू पा लिया, उसको बुझा दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 66, इफ वी ब्लैंक द कार वी वुड हैव द प्रॉब्लम ऑफ वेयर टू पार्क। 66 में क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, इफ वी ब्लैंक द कार वी वुड हैव द प्रॉब्लम्स ऑफ वेयर टू पार्क, यदि हम गाड़ी ले जाते हैं तो हमें उसको कार को पार्क करने की समस्या होगी। तो यहाँ पे 66 में जो आंसर हमारा आता है वो आ जाता है टुक, इफ वी टुक द कार। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 67 देखिए, द एयरक्राफ्ट क्रैश्ड एंड ब्लैंक फ्लेम्स, तो यहाँ पे 67 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा बर्स्ट इनटू, यानी कि एयरक्राफ्ट जो है वो पहले क्रैश होता है फिर बर्स्ट इनटू फ्लेम्स, यानी कि पूरा आग की लपटों से घिर जाता है, उसमें फट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 68, फायर ब्लैंक ड्यूरिंग द नाइट, फायर ब्रोक आउट ड्यूरिंग द नाइट, फायर ब्रोक आउट मतलब आधी रात को आग लग गई। एन अटेंडेंट विल कम इफ यू ब्लैंक द बेल। 69 में जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा रिंग, यानी इफ यू रिंग द बेल, अगर तुम घंटी बजाते हो एन अटेंडेंट विल कम। 70 नंबर क्वेश्चन, इफ वी हैड टेकन ए कोच इट ब्लैंक बेटर। 70 में जो आंसर आ जाएगा वो हमारा वो हो जाएगा वुड हैव बीन, इफ वी हैड टेकन। ठीक है, पास्ट परफेक्ट है तो यहाँ पे वुड हैव बीन, इट वुड हैव बीन बेटर। 71 number question, if you blow on a candle it blank goes out goes on goes over goes down, तो 71 में हमारा जो आंसर होगा goes out। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रांसफॉर्म द सेंटेंसेस एज पर डायरेक्शन गिवन इन ब्रैकेट्स 72 to 81। 72 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इफ ओनली आई कुड विन द प्राइज असर्टिव सेंटेंस, तो यहाँ पे इसको असर्टिव सेंटेंस में बनाना है। डू आई अलोन डिजर्व टू विन द फर्स्ट प्राइज, माई ग्रेटेस्ट एम्बिशन इज टू विन द फर्स्ट प्राइज। नंबर थर्ड, इफ समवन इज टू विन द फर्स्ट प्राइज इट शुड नॉट बी ओनली मी। नंबर 4 ऑप्शन है, इज विनिंग द फर्स्ट प्राइज वन ऑफ माई कीन डिजायर, तो 72 का जो आंसर है वो हमारा आ जाएगा सेकेंड, माई ग्रेटेस्ट एम्बिशन इज टू विन द फर्स्ट प्राइज। 73 नंबर क्वेश्चन, हु डजंट लाइक टू बी हैप्पी, असर्टिव सेंटेंस बनाना है, हु डज नॉट लाइक टू बी हैप्पी, तो 73 में हमारा ऑप्शन आएगा एवरीवन लाइक्स टू बी हैप्पी, एवरीवन लाइक्स टू बी हैप्पी। 74 नंबर क्वेश्चन, मेक हेस्ट और यू विल बी लेट, जल्दी करो वरना तुम्हें देरी हो जाएगी, इसे सिंपल सेंटेंस में बनाना है, तो हमारा आंसर होगा मेक हेस्ट टू अवॉइड बीइंग लेट, जल्दी करो ताकि तुम्हें देरी ना हो जाए। नंबर 75 क्वेश्चन, यू मस्ट कन्फेस योर
फॉल्ट टू एस्केप पनिशमेंट। तो इसे हमें कंपाउंड में कन्वर्ट करना है। हमारा जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर 2, यू मस्ट कन्फेस योर फॉल्ट और यू विल बी पनिश्ड। 76 number question, beside making a promise she kept it, beside making a promise she kept it, ऑप्शन नंबर आ जाएगा हमारा एक, क्योंकि इसे हमने बनाना है कंपाउंड में। she not only made a promise but also kept, उसने ना केवल वायदा किया बल्कि उसको कायम भी रखा, यानी उसको तोड़ा नहीं उसने। नंबर 77 क्वेश्चन, हर साइलेंस प्रूव्स हर गिल्ट, इस सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में बनाना है। हर साइलेंस प्रूव्स हर गिल्ट, उसकी चुप्पी ने, उसकी खामोशी ने उसकी गलती को, उसके गिल्ट को साबित किया। तो 77 में हमारा जो आंसर आ जाएगा, द फैक्ट दैट शी इज साइलेंट प्रूव्स हर गिल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 78, वेरी फ्यू पोइट्स ऑफ इंग्लैंड आर एज ग्रेट एज मिल्टन, तो इसका हमें सुपरलेटिव डिग्री में बनाना है। हमारा आंसर हो जाएगा 1, मिल्टन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स ऑफ इंग्लैंड। 79 नंबर क्वेश्चन, द टाइम्स ऑफ इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलर इंग्लिश न्यूज़पेपर इन आवर कंट्री, तो इसे हमें पॉजिटिव डिग्री में बनाना है। 79 का ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास नंबर 3 ऑप्शन, नो अदर इंग्लिश न्यूज़पेपर इन आवर कंट्री इज सो पॉपुलर एज द टाइम्स ऑफ इंडिया। 80 नंबर क्वेश्चन, आई एम सर्टेन दैट यू हैव कमिटेड ए क्राइम, तो इसे हमें कंपाउंड में बनाना है। ऑप्शंस होंगे हमारे पास, तो हम देखते हैं। देयर इज नो डाउट दैट यू हैव कमिटेड ए क्राइम, यू हैव कमिटेड ए क्राइम एंड आई एम सर्टेन ऑफ दिस, आई एम सर्टेन ऑफ योर क्राइम, आई एम श्योर ऑफ योर कमिटिंग ए क्राइम, यू हैव कमिटेड ए क्राइम एंड आई एम सर्टेन ऑफ दिस। अब देखिए 80 नंबर क्वेश्चन को, 80 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 81 को, ही इज टू ओल्ड टू वर्क, इस सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में बनाना है। ही इज टू ओल्ड टू वर्क, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट वर्क, ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट वर्क। 82 क्वेश्चन नंबर, द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ बैड इज, हमारा आंसर होगा इजीली आइडेंटिफाइड। 82 का हो जाएगा वर्स्ट, ठीक है, बैड वर्स वर्स्ट। ये होता है नेक्स्ट क्वेश्चन 83 का, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ लेट इज, तो 83 का जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा लेटर, ठीक है। फिर है सुपरलेटिव डिग्री ऑफ थिन इज, तो 84 में हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा थिनेस्ट। 85 नंबर क्वेश्चन, द ओल्डर यू गेट ब्लैंक इट बिकम्स टू फाइंड ए जॉब, 85 में हमारा आंसर आ जाएगा द मोर डिफिकल्ट इट बिकम्स टू फाइंड ए जॉब। 86 नंबर क्वेश्चन इज अनफॉरगेटेबल, यहाँ पे प्राइमरी स्ट्रेस को बताना है, कौन सा प्राइमरी स्ट्रेस यहाँ पर लगेगा अनफॉरगेटेबल में, तो आप इसको प्रोनाउंस करके देखिए, आप इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हमारा ये जो प्राइमरी स्ट्रेस है वो यहाँ पे आके लगता है, फॉरगेटेबल यहाँ पर, ठीक है। फिर है 87 नंबर क्वेश्चन, प्रोनाउंसिएशन, तो यहाँ पे 87 में जो आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा प्रोनाउंसिएशन। नंबर 88 टेम्पेस्चुअस, टेम्पेस्चुअस, तो इसका यहाँ पे हमें प्राइमरी स्ट्रेस को बताना है 88 में, तो हमारा यहाँ पर ये हो जाएगा टेम्पेस्चुअस, ठीक है। नेक्स्ट है राइज, तो इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हमें दिया हुआ है, हमें उस पर्टिकुलर वर्ड को आइडेंटिफाई करना है। तो 89 में हमारा जो आंसर हो जाएगा राइस, वो हो जाएगा ये राइस, कॉमन वाला जो हम खाते हैं, यूज़ करते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन है, द वर्ड एक्सिलरेट इज ट्रांसक्राइब्ड एज, तो एक्सिलरेट को हमें देखना है कि वो कौन सा इनमें से सही है। हमारा आंसर होगा 1, एक्सिलरेट। 91 नंबर क्वेश्चन, पैटर्न्स वाले आ गए हैं, आइडेंटिफाई द पैटर्न पर्टिकुलर, इट विल टर्न क्लाउडी टुमारो, इट विल टर्न क्लाउडी टुमारो, तो यहाँ पे ये इट हमारा सब्जेक्ट है, विल टर्न वर्ब है, क्लाउडी हमारा कॉम्प्लीमेंट है और एडवर्ब हमारी टुमारो, तो फर्स्ट ही इसका आंसर होगा। 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दे कॉल्ड द डॉग टॉमी,
42 में भी हमारा जो पैटर्न है वो इजी है, सब्जेक्ट वर्ब, डॉग हमारा ऑब्जेक्ट और टॉमी यानी उसका नाम है, तो ये सेकंड नंबर पैटर्न हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन, आर रशियन फ्रेंड्स हैव सेंड अस दिवाली ग्रीटिंग्स। आर रशियन फ्रेंड्स हैव सेंड अस दिवाली ग्रीटिंग्स। तो हमारा 93 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ये, जिसमें आर रशियन फ्रेंड्स हमारा जो है वो सब्जेक्ट है, हैव सेंट हमारा वर्ब है, अस जो है ये ऑब्जेक्ट है, और जो दिवाली ग्रीटिंग्स है ये भी हमारा ऑब्जेक्ट है। एक हम इसमें हमारा इनडायरेक्ट है और एक हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो पैटर्न नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर 93 का। 94 नंबर क्वेश्चन, शी सैंग ब्यूटिफुली। तो बहुत इजी सा जो एक सेंटेंस है 94 नंबर, वो ये है, शी सैंग ब्यूटिफुली। शी सब्जेक्ट, सैंग वर्ब, ब्यूटिफुली एडवर्ब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 95 नंबर, इट केम ट्रू। इट केम ट्रू, तो यहाँ पे सिंपल सी चीजें हैं, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट 95 में जो आंसर आएगा हमारा वो आ जाएगा टू। क्या हो गया, ये हो जाएगा इसका। ठीक है, SVC, इट केम ट्रू। 96 में देखिए, द फ्रेज इनॉर्मस ब्लैक आयरन गेट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। द फ्रेज इनॉर्मस ब्लैक आयरन गेट्स, कितना अच्छा सेंटेंस है, MHM का 96 में दिया हुआ है। तो ये है हमारा मॉडिफायर, 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 फिर उसके बाद में है हेडवर्ब। ये हमारा मॉडिफायर, ये भी हमारा मॉडिफायर, ये भी हमारा मॉडिफायर, और ये हमारा हेडवर्ड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 97 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिप्थोंग्स इज यूज्ड इन द वर्ड पाइप। 97 में हमारा जो आंसर आता है वो आ जाता है पाइप। ये जो डिप्थोंग है इसकी साउंड आई की आती है, आई। ठीक है, आर यू विलिंग टू वॉलंटियर। 98 नंबर क्वेश्चन, द अंडरलाइंड पार्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। किस चीज़ का एग्जाम्पल है, विलिंग टू वॉलंटियर। 98 में हमारा आंसर आ जाएगा एन एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, विलिंग टू वॉलंटियर। 98 के बाद अब देखिए 99 नंबर क्वेश्चन, इट डिड नॉट सीम पॉसिबल दैट ही कुड बी मिस्टेकन। इट डिड नॉट सीम पॉसिबल दैट ही कुड बी मिस्टेकन। अंडरलाइन जो क्लॉज है ये किसका एग्जाम्पल आ जाता है, 99 ये आ जाता है हमारा नाउन क्लॉज आ जाता है, क्योंकि नाउन के साथ इसकी खुद की पूरी एक वर्ब पैटर्न को पूरा दिया गया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे 100th नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ एन एडजेक्टिव क्लोज। इन सारे सेंटेंसेस में हमें ये बताना है कि कौन सा हमारा जो सेंटेंस है उसमें एडजेक्टिव क्लॉज दिया गया है। तो सीधा सा इसका आंसर देखते हैं, द बुक्स दैट आर ऑन द शेल्फ आर ओल्ड। 101 में देखिए, व्हेन यू गो टू स्लीप आई एम गोइंग टू वॉच द गेम। 101 में जो आंसर आ जाएगा व्हेन यू गो टू स्लीप, ये किसका एग्जाम्पल है, ये हमारी एडवर्ब क्लोज है। व्हेन यू गो टू स्लीप आई एम गोइंग टू वॉच द गेम। 102, which one of the following consonant symbols is used in the phonetic transcription of the word vision। vision 102 में जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा vision। ठीक है, 103, which one of the following vowel symbols is used in the word sit। sit, तो 103 का जो आंसर आ जाएगा हमारा वो हो जाएगा ये वाला नंबर आएगा 104 क्वेश्चन, ए मैन इज बीइंग क्वेश्चनड बाय पुलिस। द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इज बीइंग क्वेश्चनड। 104 में हमारा आंसर आ जाएगा ए वर्ब फ्रेज, ए वर्ब फ्रेज। अब आगे दिया गया है हमें एक बड़ा सा पैराग्राफ, तो चलिए पहले उसको पढ़ लेते हैं। मैनी अफ्रीकन मदर्स कैरी और नेसल देयर बेबीज ऑन देयर बैक। दिस कस्टम हैज़ एडवांटेजेस फॉर बोथ मदर एंड चाइल्ड। ए वर्किंग मदर हु हैज़ नोबडी टू लुक आफ्टर द बेबी knows he is safe on her back
while her hands are free for work. Meanwhile, the baby stays in close contact with his mother and feels warm and safe. Many women, however, prefer to carry their children all day long. They feel the children are safe, longer, keep quieter, and do not make a mess. I once visited a friend's home where the mama nurse was nestling my friend's 11-month-old child. Seeing he was restless, I asked the mama nurse to put him down. At first, she didn't want because she thought the child would make the room untidy. She was finally agreed. When she finally agreed, I asked for some kitchen pots, spoons, unopened tins, and boxes. Since there were no toys to play with, immediately the child started examining them one by one. Then he started banging the pots and boxes with the spoon. The different sounds fascinated him, but Mama Nurse didn't like the noise or the mess. अब यहाँ पर हमने बताना है द वर्ड फैसिनेटेड मीन्स। फैसिनेटेड का मीन मतलब क्या होता है यहाँ पे? डिस्ट्रैक्ट, कंफ्यूज या डिस्टर्ब्ड नहीं होगा। 105 में इसका आंसर हो जाएगा कैप्टिवेटिव। कैप्टिवेटेड आश्चर्यचकित होना, अचंभित होना, सुखद लगना, कुछ है ना, जुड़ा हुआ महसूस करना। द वर्ड नेसल मीन्स टू। 106 में जो आंसर आएगा हमारा नेसल। होल्ड ए बेबी इन ए कंफर्टेबल पोजिशन इन ए सॉफ्ट और वार्म प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 107। द चाइल्ड वॉज रेस्टलेस बिकॉज। बिकॉज क्या था यहाँ पे इसका जो रीजन है 107 का, बिकॉज ही वॉन्टेड फ्रीडम एंड ए चांस टू यूज हिज लिम्स। 108 मैनी mothers carry children on their backs because children love being carried this way all day long. The husband wants them to carry children this way, that they think that children remain safe and quiet this way. This is the best way of nestling children. तो ये आई गेस नहीं, आई एम श्योर इसका जो आंसर है आरपीएससी ने वो यही दिया है, थर्ड नंबर। ठीक है, कि उनको लगता है कि बच्चे इस तरह से उनके पास बिल्कुल सेफ हैं और सुरक्षित हैं। 109 The practice of carrying children on their backs all day long followed by many African women is। 109 में जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा आंसर नंबर 2, disapproved by the writer। The practice of carrying children on their backs all day long followed by many African women is disapproved by the writer। ठीक है, अब देखिए 109 के बाद में एम्बिगुअस, इसका हमें सिनोनिम या मोस्ट क्लोजली जो है ना आंसर मिलता जुलता है एम्बिगुअस। तो 110 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डाउटफुल। नंबर 111 क्वेश्चन कंपेलियंस, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 111 का, वो होगा ओबीडियंस, कॉम्प्लियंस। ठीक है, कॉम्प्लियंस। नंबर 112 डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी का जो सिनोनिम बताना है पार्शियलिटी, स्टिंगिंगनेस, इनजस्टिस, इनइक्वालिटी। तो 112 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा इन इक्वालिटी। डिस्पैरिटी मतलब इनइक्वालिटी। अब देखिए 113 नंबर क्वेश्चन की तरफ। एक्स्ट्रा वेगनेंट इज। एक्स्ट्रा वेगनेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा जो बढ़ाया चढ़ाया जाके बताया जाता है एग्जेजरेट करके। 113 का जो आंसर है वो होगा स्पेंड थ्रिफ्ट। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू द डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से क्या चीज़ जो है वो एप्लीकेबल नहीं करती है। ग्रामर इज प्रेजेंटेड डिडक्टिवली। तो यहाँ पे पहला ही आंसर जो इसका है 114 का ये आ जाता है कि ग्रामर डिडक्टिवली नहीं होती है, इसमें इंडक्टिवली होती है। जीटीएम मेथड में जब हम पढ़ते हैं वहाँ पर ग्रामर जो है वो डिडक्टिवली पढ़ाई जाती है। 115 क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिगार्ड टू फ्री कंपोजिशन। फ्री कंपोजिशन से रिलेटेड क्या चीज़ नहीं आती है, तो उसमें ये बताया जाता है इन इट द स्टूडेंट्स वर्क ऑन गिवन आइडियाज़, कि इसमें बच्चे जो गिवन आइडियाज़ होते हैं उसी के ऊपर ही काम करते हैं। इन इट द स्टूडेंट वर्क ऑन गिवन आइडियाज़,
यहाँ पे ये कंपोजिशन के मामले में सही नहीं है कि उनको जो कह दिया वही उन्होंने कर लेना है। कंपोजिशन का मतलब ही होता है कि फ्री ऑफ कंपोजिशन, यानी कि वो अपने पूरे होशो-हवास में जितनी अंडरस्टैंडिंग उनकी है अच्छे से वो कर सके। 116 नंबर क्वेश्चन है, द स्किल ऑफ लाउड रीडिंग इज द most useful blank at lower levels of learning, at higher levels of learning, at both lower and higher levels of learning, in real life after the school and university education. तो 116 में हमारा आंसर आ जाएगा एट लोअर लेवल्स ऑफ लर्निंग। लाउड रीडिंग हम छोटी क्लासेस में ही ज़्यादा करवाया जाता है, ठीक है, टीचर करवाते हैं। नंबर 117, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा इनका आपस में मैच नहीं है। तो यहाँ पे डॉक्टर फोस्टस तो मार्लो का ही लिखा हुआ है और शेक्सपियर का विंटर्स टेल भी है। 117 में हम देखें रिचर्ड शेरिडन ने राइवल्स भी लिखा है, लेकिन स्कूल फॉर स्कैंडल्स ओलिवर गोल्डस्मिथ का नहीं लिखा हुआ है। 117 का आंसर आ जाएगा 117 का आंसर आ जाएगा ओलिवर गोल्डस्मिथ द स्कूल फॉर स्कैंडल। नेक्स्ट देखिए 118 नंबर क्वेश्चन, ए प्लीजिंग और ट्यूनफुल अरेंजमेंट of accented and unaccented syllable is called। 118 में क्या पूछा गया है कि एक ट्यूनफुल अरेंजमेंट है जो एक्सेंट और एक्सेंटेड सिलेबल्स हैं उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है रिदम। क्या कहा जाता है? रिदम। फिर है 119, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज नॉट फॉलोड इन द कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। इंग्लिश कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग जो है CLT, इसमें क्या टेक्निक्स को फॉलो नहीं किया जाता है, तो 119 में आ जाएगा नंबर 1, पैटर्न प्रैक्टिस नहीं होती है, वो स्ट्रक्चरल मेथड में करवाई जाती है। 120 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज नॉट फॉलोड इन द डायरेक्ट मेथड। डिक्टेशन, कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस, मेमोराइजेशन ऑफ वर्ड मीनिंग एंड रूल्स, गेटिंग स्टूडेंट्स टू सेल्फ करेक्ट। तो 120 में मेमोराइजेशन ऑफ वर्ड मीनिंग एंड रूल्स नहीं देखा जाता है, यानी कि इसमें ज़्यादा इसको फॉलोअप नहीं किया जाता है। 121 में क्या पूछा गया है, द फिगर ऑफ स्पीच इन्वॉल्विंग ए डायरेक्ट एड्रेस द फिगर ऑफ स्पीच इन्वॉल्विंग ए डायरेक्ट एड्रेस इधर टू एन एब्सेंट पर्सन और टू ए पर्सोनिफाइड इन एनिमेट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। 121 में जो हमारा आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा अपोस्ट्रोफी। 122 number question is, the reading skill of skimming is employed to get complete understanding of the text, to make prediction while reading, to locate a specific item of information, to have a general idea of what the text is about। तो 122 में हमारा आंसर हो जाएगा नंबर 4, to have a general idea of what the text is about। क्वेश्चन नंबर 123 आ जाता है, इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर इन्वॉल्व्स। तो 123 में हमारा जो आंसर आने वाला है वो ये है, प्रेजेंटेशन ऑफ एग्जाम्पल्स बिफोर डेराइविंग रूल्स विद द हेल्प ऑफ लर्नर्स। प्रेजेंटेशन ऑफ एग्जाम्पल्स बिफोर डेराइविंग रूल्स विद द हेल्प ऑफ लर्नर, लर्नर की हेल्प से आपको रूल डेराइव करने से पहले एग्जाम्पल्स को प्रेजेंट करना होता है। ये हमारे इस क्वेश्चन में इंडक्टिव मेथड होता है टीचिंग ग्रामर को बताने में। नेक्स्ट देखिए 124 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स प्रेजेंट्स एंड प्रैक्टिसेस लैंग्वेज इन कॉन्टेक्स्ट एंड सिचुएशन। तो ये कौन सा इसमें यूज़ किया जाता है पैटर्न को, तो 124 में जो आंसर है हमारा वो होता है स्ट्रक्चरल सिचुएशनल मेथड। ठीक है, इसमें मेथड्स को प्रेजेंट किया जाता है, प्रैक्टिस करवाई जाती है कॉन्टेक्स्ट एंड सिचुएशंस को लेके स्ट्रक्चरल सिचुएशनल मेथड में। 125 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच करेक्टली। तो 125 का जो आंसर है वो पहले यही आ जाता है, क्योंकि कुबला खान जो है वो कॉलरिज का लिखा हुआ है। राइम ऑफ एंसन मैरिनर भी इसी का लिखा हुआ है। कीट्स ने ओड टू ऑटम लिखा है, टेनिसन ने यूलिसिस लिखा है। नेक्स्ट देखिए 126 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट एसोसिएटेड विद ट्रेजिक कॉमेडी। ट्रेजिक कॉमेडी से क्या चीज़ जो है वो एप्लीकेबल नहीं है, नीचे दिए गए ऑप्शन में। 126 में हमारा आंसर आ जाएगा 1, इट डेल्ट ओनली
विद द डार्क साइड ऑफ लाइफ। ट्रेजिक कॉमेडी में दोनों चीज़ें सिर्फ एक डार्क साइड नहीं होता है, थोड़ा हंसमुख व्यवहार को भी दिखाया जाता है, थोड़ी थोड़ी फनी मोमेंट्स क्रिएट किए जाते हैं। 127 नंबर क्वेश्चन, पोइट्री इज टॉट मेनली टू, पोइट्री इज टॉट मेनली टू, तो यहाँ इसका जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा 127 का, ये हो जाएगा टू मेक स्टूडेंट्स इंजॉय पोइम्स ब्यूटी एंड मेलेडी। ये क्वेश्चन बहुत, मतलब अभी तक मैंने जितने एग्जाम करवाए हैं 4, उनमें से 3 में मैंने ये क्वेश्चन देख चुकी हूँ, चौथे में फिर उसी चीज़ को वापस लिखवाया जा रहा है कि पोइट्री का टॉट मीनिंग जो मेन है वो टॉट करवाना क्या चीज़ एक मोटिव है, तो वो है कि स्टूडेंट्स को एंजॉय कराना सिखाना पोइम्स की ब्यूटी को, उसकी मेलोडी को, उसके एस्थेटिक वैल्यू को। ठीक है, 128 नंबर क्वेश्चन इस इसमें डाउन का जो है ऑपोजिट पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो डाउन का जो ऑपोजिट है वो 128, इसका हो जाएगा थर्ड, डस्क, सूर्योदय, और ये गोधूली का जो समय होता है, ठीक है, डस्क। फिर है 129 क्वेश्चन नंबर, विच वन इज ऑड वन आउट। अब इनमें से पूछा गया है कि इनमें से ऑड वन आउट क्यों है। निजी मस्किल, सरोजनी नायडू, डॉम मोरेस, ये तीनों जो है वो एक ही टाइम पीरियड से बिलोंग करते हैं, 1920 सेंचुरी, और ये जो किरण देसाई हैं ये 21 सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इनका इंडो इंग्लिश राइटर है ये। ठीक है, और अब देखिए 130 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड यूजेस स्टूडेंट टू स्टूडेंट इंटरेक्शन मोस्ट फॉर लर्निंग इन क्लासरूम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स यूजेस स्टूडेंट टू स्टूडेंट इंटरेक्शन मोस्ट फॉर लर्निंग इन द क्लासरूम। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट इंटरेक्शन जो करवाया जाता है ना, वो करवाया जाता है हमारा 130 में आ जाता है कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में, यानी कि मोस्ट ऑफ करवाया जाता है। हालांकि डीएम में भी ये कहा जाता है कि आप पूरा उसमें चांस अवेलेबल करवाओ, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है इस पे दिया जाता है कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में। 131 में देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद द रिगार्ड टू टेस्टिंग। इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। टेस्ट मेजर्स द एक्सटेंट ऑफ स्टूडेंट अचीवमेंट ऑफ द instructional objective. Test diagnose students weakness and strengths. Test do not provide any feedback to teacher. Test help to rank and promote student on the basis of merit। तो यहाँ पे 131 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा हमारा थर्ड, टेस्ट डू नॉट प्रोवाइड एनी फीडबैक टू द टीचर। बिल्कुल करवाते हैं, टेस्ट लेते हैं, तभी तो टीचर को पता लगता है कि बच्चे ने क्या गलती की है क्या नहीं की है, तभी वो फीडबैक देता है। लेकिन यहाँ पूछा गया इससे संबंधित नहीं है, सत्य नहीं है। सत्य तो ये है कि फीडबैक नहीं देंगे, ऐसा तो भाई गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 132 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द रोल्स ऑफ स्टूडेंट एंड टीचर्स इन ऑडियो लिंग्वल मैथड। ऑडियो लिंग्वल मैथड के मामले में टीचर्स की और स्टूडेंट्स की जो एक टीचर और स्टूडेंट्स का जो रोल है उसके बारे में पूछा जा रहा है 132 में। द टीचर डायरेक्ट्स एंड कंट्रोल्स द लैंग्वेज बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स। द टीचर प्रेजेंट गुड मॉडल्स फॉर इमिटेशन। द स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू ओवर लर्न द target language to be able to use the automatically. Students are left free to practice the language and interact with other student। तो हमारा 132 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा नंबर 4, कि स्टूडेंट्स को यहाँ पर बिल्कुल फ्री छोड़ दिया गया है क्या करने के लिए, कि लैंग्वेज की प्रैक्टिस करो और टीचर्स स्टूडेंट्स के साथ में इंटरैक्ट करो। 133 नंबर क्वेश्चन है, रीअरेंज द 4 लेवल्स ऑफ कॉम्प्रीहेंशन एज दे आर जनरली डेल्ट विद इन क्लासरूम। तो इनको हमें सीरियल वाइज करना है कि कौन सी चीज़ पहले करवाई जाती है किसी भी क्लासरूम में। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, रीऑर्गेनाइजेशन लेवल, लिटरल लेवल्स, इवैल्यूएटिव लेवल्स, इंटरप्रेटिव एंड इन्फ्रेंशियल लेवल। तो 133 में जो हमें आंसर मिलता है वो हमारा मिल जाता है हमें 3 नंबर 2143 की। सबसे पहले लिटरल लेवल होता है, उसके बाद में हमें रीऑर्गेनाइजेशन लेवल को क्रिएट करना होता है, फिर हमारा इंटरप्रेटिव एंड इन्फ्रेंशियल लेवल होता है, और इवैल्यूएटिव लेवल सबसे लास्ट में आता है। ठीक है, इवैल्यूएटिव वाला सबसे लास्ट में आता है। 134 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एलिजाबेथन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर
लास्टेड। अब आप फिर से देख सकते हैं, जो मैं हर पेपर में एक ही बात को बोलती आई हूँ कि कोई भी टाइम जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर दिया गया है उसमें हर एज से क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पर्टिकुलर एज का ही पूछा जा रहा है अभी तक, है ना। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है एलिजाबेथन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर लास्टेड। आप इसके लिए हमने एक ब्रीफ हिस्ट्री दिया है हमारे चैनल पर ही, उसे भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। उसमें से डेफिनेटली एक दो क्वेश्चन आपके ज़रूर पड़ जाएंगे। बाकी मुझे अभी वक्त नहीं मिला कि मैं इसके डिटेल्ड जो है पर्टिकुलर एज के क्वेश्चन वीडियो बना पाऊँ, बट जैसे मिलेगा मैं आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाऊंगी एज सुन एज पॉसिबल। सो बट अभी के लिए आप जो एक जो ब्रीफ हिस्ट्री का जो एक छोटा सा वीडियो है वो आप थोड़ी देख सकते हैं और उसमें से अपनी तैयारी को कवर अप कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। एलिजाबेथन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर लास्टेड 134 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा आ जाता है 1558 टू 1603। ठीक है। अब देखिए 135 नंबर क्वेश्चन, द डिवाइस बाय मीन्स ऑफ विच द ट्रूथ इज वेल्ड इन द फॉर्म ऑफ ए सार्काज्म बाय इम्प्लाइंग द ऑपोजिट टू व्हाट इज रियली स्टेटेड इज कॉल्ड। कि ऐसा कौन सी एक डिवाइस है, कौन सी एक टर्म है जिसके अर्थ में हमें बताया जाता है कि सत्य जो है वो वेल्ड है, छुपा हुआ है, इन द फॉर्म ऑफ ए सार्काज्म, एक व्यंग्य के रूप में छुप जाता है, एंड बाय इम्प्लाइंग द ऑपोजिट, और उसका उल्टा कहकर बताया जाता है टू व्हाट इज रियली स्टेटेड, जो कहा गया है उससे उल्टा ही कहा जाता है लेकिन सत्य कहा जाता है। 135 में हमारा क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आयरनी, व्यंग्यात्मक कहा जा रहा है, सार्काज्म होता है ना। नंबर 136 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स गिव द स्टूडेंट ग्रामेटिकल रूल्स एंड पैराडिगम्स। यहाँ पर स्टूडेंट्स को ग्रामेटिकल रूल्स और पैराडिगम्स हमने जो बताने हैं, समझाने हैं, 136 का जो आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। GTM में हम इन चीज़ों को बताते हैं। 137 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल to grammar translation method। Students are given lists of vocabulary items or students are encouraged to memorize the given rules of the target language। Word to word translation in mother tongue is considered an effective way of learning the target language। Spoken English is greatly emphasized। तो 137 में जो हमारा आंसर आने वाला है वो ये है, स्पोकन इंग्लिश इज ग्रेटली एम्फेसाइज्ड। तो वापस देख लीजिए इस क्वेश्चन को कि इस GTM मेथड के बारे में क्या सही नहीं है। तो ये कहते हैं कि हमारा ये जो स्पोकन इंग्लिश है ना उसी पे सारा जोर दिया जाता है, ये सत्य नहीं है। नेक्स्ट है 138 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मैन बुकर प्राइज विनर। तो यहाँ पे मैन बुकर प्राइज विनर कौन नहीं है। 138 क्वेश्चन जो है वो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। VS नायपॉल को भी मिल चुका है, किरण देसाई को भी मिला है, अरविंद अडिगा को भी मिला है, लेकिन अनीता देसाई को नहीं मिला है, नॉमिनेट जरूर किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच मेथड वॉज डेवलप्ड एज ए रिएक्शन, विच मेथड वॉज डेवलप्ड एज ए रिएक्शन टू GTM। GTM के रिएक्शन के रूप में किस मेथड को लाया गया था। 139 में इसका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट मेथड। ठीक है। अब देखिए 140 नंबर क्वेश्चन, while teaching English prose, a teacher should explain all the difficult words of the text, should not explain any of the difficult words, should not involve students while explaining words, should explain only those words that are essential to understanding of the text seeking students involvement। तो 140 में हमारा आंसर निश्चित तौर पर यही है, हमारा नंबर 4, कि स्टूडेंट्स को इंग्लिश प्रोज पढ़ाते टाइम पे टीचर को चाहिए कि वो केवल उन वर्ड्स को एक्सप्लेन करे जो उनको बच्चों को उस टेक्स्ट को समझने में, सीखने में आसान कर दे, उसकी उनकी थोड़ी हेल्प कर दे। 144 नंबर क्वेश्चन, ए मेडिटेटिव और ए फॉर्मल एंड सस्टेन्ड पोइम ऑफ लेमेंट फॉर द डेथ ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन इज कॉल्ड। ये भी क्वेश्चन देख लिए, रिपीट करे जा रहा है और ये है हमारा एलेजी। 142 क्वेश्चन है, द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड एडमोनिश इज। एडमोनिश का जो ऑपोजिट है वो हमें बताना है। 142 में ये आ जाएगा एनकरेज। ड्राइडन एंड पोप बिलोंग टू। ड्राइडन
और जो अलेक्जेंडर पोप है ये किससे बिलोंग करते हैं? तो 143 में हमारा जो आंसर आ जाएगा, ये बिलोंग करते हैं नियो क्लासिकल एज से, ठीक है? रेस्टोरेशन एज और जो अगस्टन एज है, यानी कि एज ऑफ पोप भी कहा जाता है, एज ऑफ ड्राइडन भी कहा जाता है, नियो क्लासिकल मूवमेंट भी कहा जाता है, वो यही है, ठीक है? ड्राइडन जो फेमस है एब्सलम एंड एक्िटोफिल के लिए, और उसके अलावा भी बहुत सारी क्रिएशन है। अलेक्जेंडर पॉप भी काफ़ी फेमस है, काफ़ी अच्छी पोएम्स भी लिखते हैं, और इनका एक रेप ऑफ फ्लॉग भी काफ़ी फेमस जो है वो नॉवल है। 144 में देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू द ऑडियो लिंगुअल मेथड। ऑडियो लिंगुअल मेथड से क्या चीज़ कनेक्ट नहीं होती है? स्टूडेंट फर्स्ट लिसन, देन स्पीक, देन रीड एंड फाइनली राइट द लैंग्वेज, बिल्कुल सही है, LSRW को फॉलो होता है। ग्रामर इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ मॉडल पैटर्न एंड डायलॉग्स, ये भी सही है ना? फिर है स्टूडेंट डेवलप करेक्ट लैंग्वेज हैबिट थ्रू ड्रिलिंग ऑफ पैटर्न्स, बिल्कुल सही है। तो फोर्थ भाई साहब क्या आता है? ग्रेट एम्फेसिस इज प्लेस्ड ऑन एस्टैब्लिशिंग मीनिंग। नहीं 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 नहीं, ये इस्टेब्लिश मीनिंग पे तो इतना कोई फोकस है ही नहीं, क्योंकि सुनने सुनाने चीज़ों को समझने में इतनी चीज़ें आ गई हैं सामने, तो वो इजीली अंडरस्टैंड कर जाते हैं। 145 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड कॉर्पोरियल इज। तो यहाँ पे कॉर्पोरियल का जो मीनिंग है ऑपोजिट, वो हमें बताना है। 145 का ये आ जाएगा स्पिरिचुअल। द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड जुडिशियस इज। जुडिशियस का जो एक ऑपोजिट है वो हमें बताना है। इनडिस्क्रीट इसका हो जाएगा। 147 विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच करेक्टली। इसे कौन मैच नहीं करता है? तो यहाँ पे कुछ क्रिएशंस दी गई हैं, वो हमें बतानी है कि किसकी कौन सी है कौन सी नहीं। तो यहाँ पे विक्रम सेठ ने सुटेबल बॉय लिखा है, सलमान रश्दी ने मिडनाइट चिल्ड्रन लिखा है, अरुंधति रॉय ने गॉड ऑफ स्मॉल थिंग लिखा है, अमिताभ घोष ने ये नहीं लिखा है, वाइट टाइगर ये लिखा है अरविंद अडिगा ने, जिसके लिए इन्हें मैन बुकर प्राइज मिला था। ठीक है, ठीक है, ये सब लिखे हैं। फिर ये अमिताभ घोष का द हंगर टाइड वाले। फिर है, अब हम बात करते हैं 149 क्वेश्चन की, जो इस पेपर का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। द टाइप ऑफ टीचर कंसिडर्ड अनडिजायरेबल इज वन हु स्टैंड इन वन पोजिशन एंड लेक्चर, कीप ऑलवेज ऑन द मूव, यूजिंग हैंड्स, फेशियल एक्सप्रेशन, लाइवली वॉइस, ड्राइविंग होम हिज टीचिंग पॉइंट्स, appears to be interested in what he is doing, facilitates students to student interaction। तो ये बड़ा अच्छा सा आंसर है इसका, कि यहाँ पे वन द टाइप ऑफ टीचर कंसीडर्ड अनडिजायरेबल। अनडिजायरेबल डिजायरेबल टीचर कौन होगा? कि जो एक ही जगह पर खड़ा रहे और लेक्चर देता रहे, ऐसे टीचर को तो अनडिजायरेबल ही कहा जा सकता है। क्लास में वो टीचर अच्छे लगते हैं जो अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस को शो करते हैं, लाइवली जिनकी वॉइस होती है, जो बाइंड अप कर लेती है स्टूडेंट्स को, और अच्छे से मतलब वो अपने टीचिंग पॉइंट्स को सामने रखते हैं। और ऐसे जो मतलब टीचर्स को भी इंटरेस्टेड कहा जा सकता है, स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो जाते हैं टीचर में, कि जो वो करवाते हैं, जो समझाते हैं, उसमें इंटरेस्टेड हो जाते हैं। फैसिलिटेट स्टूडेंट टू स्टूडेंट इंटरेक्शन, जो स्टूडेंट टू स्टूडेंट इंटरेक्ट भी करते हैं, ऐसे फैसिलिटेटर के तौर पे भी ऐसे टीचर को पसंद किया जाता है। बट एक जगह खड़े होकर लेक्चर दे के चला जाए, वो अनडिजायरेबल टीचर होता है। 150 में देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑथर डज नॉट बिलोंग टू एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज से कौन सा राइटर जो है वो बिलोंग नहीं करता है? तो मार्लो करते हैं, है ना, डॉक्टर फॉस्टर्स वाले। शेक्सपियर जी करते हैं, बेन जॉनसन भी करते हैं, लेकिन जॉन मिल्टन नहीं करते हैं। ये नियो क्लासिकल से पहले के थे, प्योरिटन एज वाले। तो चलिए जी, आज का पेपर होता है ख़त्म। जल्द ही मिलते हैं एक और नए पेपर के साथ, जो आरपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया गया है सेकंड ग्रेड का। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में देने का कष्ट ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।